Okay, class. So now we know beta, we know systematic risk, ठीक है? और हमने देखा कि beta aggressive, can be defensive, can be equal to 1. When it is equal to 1, so it's just like the market portfolio. So today we'll talk about what we studied earlier in the previous chapter के वो जो valuation आप करते हैं. अब उसकी valuation देखते हैं और यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है इस concept को देखते हैं और फिर देखते हैं कि according to that a price is a stock is overpriced or underpriced. ठीक? Okay. So Lisa Miller at BW is also attempting to determine the intrinsic value of the stock. Remember intrinsic value of the stock? Yes. Intrinsic value of the stock क्या चीज होती है? The value Of stock ought to have. ought to have. ठीक है? और ought to have के लिए फिर value of the stock के लिए आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे? Past dividend. Past dividend. लेकिन क्या आपके दिमाग में क्या होता था? You would either go for Coupon rate. stock जी भूल गए इसका तो क्विज भी करना है Comes from KO. हाँ so we will go for dividend discount models and then in dividend discount models we have different assumptions so either we go for a constant growth model या फिर zero growth model या फिर growth phases ठीक है ये तीन चीजें ये क्या कह रही है कि intrinsic value of the stock find out करना है she is using the constant growth model remember the constant growth model Yes. remember the formula Yes. what is the formula B1 divided by K equals d B1. 1 divided by K minus k minus G. g सही है where g is the growth rate k is your cost of equity ठीक है या required rate of return या investors required rate and d1 is the dividend for the End of the future. d1 is the dividend It will last present. Dividend paid at the present time. would always be zero Sir, dividend paid at the 1 time. year from now. paid At the time. 1 year उसी from time. now. Like 0 1 year from now जीरो के बाद देखें जो अभी पे किया ना बिल्कुल अभी वो होता है जीरो End of the year. तो एंड ऑफ द ईयर ना बोले ना बस नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट ईयर वुड बी अ गुड वन ओके सो डी नॉट के बाद जो आएगा दैट वुड बी डी वन ठीक है ये भी हो गया सो लीज एस्टिमेट्स आर द डिविडेंड नेक्स्ट पीरियड विल बी 0.5 नेक्स्ट 1.5 ठीक है नेक्स्ट पीरियड तो D1 नेक्स्ट पीरियड हो गया डी1 Yes, sir. अगर ये कहता है कि डिविडेंड जस्ट रिसीव्ड Yes. so then that would mean it is D Not. not Yes, sir. ठीक है D0 Yes, sir. अब ये कह रहा है कि next period so it is D1 ये तो आपको पता चल गया and that BW will grow at a constant rate of Growth rate 5.8. ये growth rate आपको मिल गया 4.8% so what does it need now The stock is currently selling. the stock is currently selling for 15 15 क्या चीज होगी Rearrange करेंगे sir. 15 क्या होगी एक मिनट मत चलना होल्ड ऑन Market. 15 क्या होगी Intrinsic value sir. Low. Market. Market. currently selling Yes sir. intrinsic value क्या थी 700 क्या बताया ought to have Yes sir. तो ये तो इंट्रिंसिक नहीं है ना जी सर। ये तो करंट है अभी सेल कर रही है तो करंट है और वो जो एमएन सलमान जो आप कह रहे हैं कि रीअरेंज वो हम किस काम में किस वक्त करते थे व्हेन वी यूज्ड टू फाइंड YTM YT. हम कहते थे कि अगर YTM फाइंड आउट करना है सो रिप्लेस दिस विद द करंट मार्केट वैल्यू Yes, sir. put in the value of dividend जी sir. put in the value of growth rate and then find out the YTM or the K याद है Yes, sir. याद आया कल इसका क्विज करना है कल इसका क्विज करना है याद होना चाहिए ओके अच्छा अब आते हैं अब यहां पर करंट मार्केट वैल्यू गिवन है करंट मार्केट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग द स्टॉक इज करंटली सेलिंग फॉर 15 व्हाट इज द Intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू और यू वैल्यू ऑट टू हैव ये फाइंड आउट करना ठीक इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी अगर आप ये इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं v so what do you need D1 which is given in the question which is Sir, 0.5. 0.5 okay K Not. not given Yes sir. G Is it 5.8? 5.8% Yes sir. K is not given अच्छा अब आप कह रहे हैं K is not given K का हमने क्या क्या नाम पढ़ा Utilization. Curve.
कौन सा? कैपिटलाइजेशन रेट, हाँ वो जब डिस्काउंट कर रहे थे हमने कहा था कि Discount डिस्काउंट rate required. अच्छा डिस्काउंट Required रेट rate of रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, ठीक है, या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस एग्जांपल से पहले you found out for the same organization or for the same person, you found out what is the required rate of return on the stock of Basket Wonder. yes sir, आपने BW का required rate of return find out किया था, और BW का required rate of return आपने कितना find out किया था? 10.8%। 10.8%। ये उसका required rate of return था। अभी मैंने आपसे पूछा कि KE का और क्या क्या नाम है, तो आपने कहा सर KE is the required rate of return और D is required rate या capitalization rate या हाँ capitalization, ये नाम आप लोगों ने मुझे दिए, ठीक yes है। sir, अब इसका मतलब ये है कि this is actually the required rate of return, and KE this KE is the required rate of return of the investor, ठीक है। Yes, sir. तो ये आप इससे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। जी सर, एग्जाम में ये इस तरह होगा कि एक ही फ्लो में क्वेश्चन जा रहा होगा, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड पूछ लूंगा। ओके, सो नाउ यू नो दिस इज 10.8%। yes sir, So now if it is 10.8%, what will be the intrinsic value? Kindly find the intrinsic value. Kindly find the intrinsic value class. 10. 10? G. Sepulveda says 10. Kindly check. Kindly check. Ahmed Suleiman. क्या है? 0.1 sir, 0.1, which is 0.1? How can it be 0.1? Ahmed Suleiman? Must have made a mistake. 0.05. हाँ, 0.5 divided by 0.05. 10.8% minus 5.8% will be 5%. Yes. ठीक है, so 5% equals 0.05. अहमद सलेमान आपने 5 लिखा होगा, जी सर, ठीक है, so it is 5%, it's not 5, and 5% equals 0.05. जी So सर, 0.5 divided by 0.05, the answer will be 10. सही है? yes sir, Clear to all of you? Yes. Okay. So now this is the intrinsic value. Intrinsic value आपको पता चल गई। अब आप कहते हैं कि मैंने कैलकुलेशन की है और मेरे मुताबिक इस स्टॉक की कीमत कितनी होनी चाहिए? 10, 10, Poor price. ठीक, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में कितने का बिक रहा है? 15 का। So that means the stock is undervalued, overvalued, underpriced, overpriced. Poor price. Overpriced. मार्केट में ये स्टॉक महंगा बिक रहा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 10 रुपए, 10 रुपए, लेकिन ये बिक रहा है 15 का, so it is overvalued. Why? Because the market price, which is 15, exceeds the intrinsic value, which is 10. Clear? yes sir, सबको clear? ठीक? अच्छा, अब होगा क्या? अब होता क्या है? जब भी कोई चीज ओवर प्राइस होती है तो क्या होता है? या ओवर वैल्यू होती है तो क्या होता है? Poor value. ओवर वैल्यू जो है ना, वो तो हमने डिसाइड कर लिया। So what will happen? After a month, what will happen? Eventually क्या होगा? Eventually क्या होगा? expected rate of return is ज़्यादा, Price जो है नीचे ही. जी? Price दोबारा नीचे ही. प्राइस दोबारा नीचे आएगी, क्यों? Demand कम होगी. डिमांड कम होगी, क्यों? Price बढ़ गई. इसलिए. Price? Price ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी. प्राइस ज्यादा है, ठीक है, आपने फाइंड आउट किया कि यार इसकी कीमत तो 10 होनी चाहिए, लेकिन वो मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का, 15 रुपए का, ठीक है, तो अब वो मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का, ठीक, दिस इज समथिंग व्हिच इज ओवरप्राइस्ड, ठीक है, ये ओवरप्राइस्ड है, तो अगर ये ओवरप्राइस्ड है और ये हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क है और द बीटा एंड दोस आर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स, सो राइट नाउ दिस इज योर स्टॉक, ठीक, विद a given required rate of return, तो अगर वो मार्केट में प्राइस उसकी ज्यादा है, ठीक है, और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ स्पेसिफिक जो भी आ रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज 10.8%, ठीक है, 10.8% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, तो हम लोग which is more than your RF is over here, okay, so which is more than your RF, so the direction of movement for such stock would be कि it will move towards the security market line, ठीक है, वो security market line की तरफ जाएगा, with the passage of time इसकी प्राइस जो है वो कम होती जाएगी, ठीक, and it will move till the point it moves towards the security market line. Now if it is the other way around, something is underpriced, so if it is something underpriced, so people will start buying it
तो उसकी मूवमेंट जो है Price will it will be increase. down towards the security market. So that's how stocks would move if they are underpriced or Overpriced. overpriced. सर ये ओवर प्राइस की सर एक ग्राफ में तो ऊपर जा रही है प्राइस और और ये प्राइस है, ये क्या चीज है? प्राइस तो नहीं है Characteristic. Price प्राइस नहीं लिखा है। नहीं है कि प्राइस कौन सा है तो यहाँ तो प्राइस का नहीं लिखा ना, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये किस तरीके से हाउ डज इट वर्क। मतलब ओवर प्राइस की जो है दोबारा नीचे वापस आएगी ओवर प्राइस की दोबारा प्राइस नीचे आएगी ओवर प्राइस की प्राइस नीचे आएगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस उसकी ज्यादा है तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, वो कम हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होता जाएगा, ठीक। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों प्राइसेस जो है एक किस्म की बराबर होगी ना, ठीक, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर तब होगी जब या तो उसकी प्राइस जो है वो प्राइस उसकी कम हो जाए, तो तब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाएगा ना, जी सर ठीक है। अगर प्राइस किसी चीज की कम हो जाए तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, ठीक है, प्राइस कम होगी एग्जैक्टली। तो आप इस लाइन में सही, क्लियर। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा करेक्ट होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा करेक्ट होगी। अब तो मैंने जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ रहे थे ना, तो हमने कहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम लोग दिमाग में वो फैक्टर्स रखेंगे जो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है, ठीक। बॉन्ड के लिए बड़ा आसान था कि दो चीजें अफेक्ट कर रही थी, कूपन था उसका और मेच्योरिटी वैल्यू। स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? हमने कहा डिविडेंड अगले पीरियड्स में क्या है आपको नहीं पता, तो आपने अज्यूम किया। तो हाँ, अगर assumptions सही है तो फिर से, ठीक है। ये सारा बात assumption के ऊपर है। तो अगर आपकी assumption गलत हो गई तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। आप अज्यूम करते हैं कि ये स्टॉक, ये जो भी हमने स्टॉक देखा, ये इसका डिविडेंड ग्रो करेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट ग्रो ना करे, फेजेस में ग्रो कर दे, तो फिर तो ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। तो बस ये सिर्फ ये मसला है और कोई मसला नहीं। assumptions अगर आपकी हैं तो फिर से इन assumptions के साथ सही, और अगर assumption आपकी गलत है तो फिर ऑब्वियसली got the idea class? got the idea? okay, so now let's talk about anomalies. अभी ये anomalies है क्या? anomalies क्या होती है? anomalies क्या होती है? मैं बताऊंगा, फिर आपका क्या है? तो पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए अब्दुल रहमान तो कहते हैं नहीं, हम तो और भी बहुत सारे काम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखें, हमने कहा कैपिटल हमने पढ़ा ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अभी जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, हमने कहा था कि इसमें द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी, लेट्स से पासिंग मॉडल्स, ठीक, इज रिस्क फ्री प्लस बीटा प्लस अ प्रीमियम आरएम माइनस RF, which is based on बीटा systematic risk of the security. याद है डेफिनेशन? ये Yes, sir. अच्छा, आपने ये लिख दिया, इसका मतलब ये कि हम क्या को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सिक्योरिटी। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हर दफा तो ये चीज काम नहीं करती, कभी-कभी कुछ अजीब-अजीब चीजें होती हैं, ठीक है। कैपिटल को कुछ चीजें चैलेंज करनी है, कुछ चीजें, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नहीं, कैपिटल उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बस वो कुछ चीजें हो रही हैं। Empirical studies showed beta to have reasonable predictive power about return, particularly return on portfolio of common stocks. ठीक है, बीटा वो कहता है, जो स्टडीज हैं वो शो करती हैं कि हाँ बीटा काम करता है। स्टडी शो करती है कि जब ये बीटा फाइंड आउट करते हैं और इसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो सही है, ठीक है। पास्ट स्टडीज ये शो करती है। लेकिन it is fairly easy to understand and apply such market imperfections as bankruptcy costs, taxes and institutional constraints have been recognized and refinements can be made to account for their effects. लेकिन कुछ और चीजों के भी इफेक्ट है, जैसे टैक्स वगैरह, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, टू फैक्टर मॉडल, मल्टी फैक्टर मॉडल, अभी आपको बताऊंगा, पढ़ेंगे डिटेल में, नहीं सिर्फ आपको आइडिया दे दूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, ये तो सिर्फ दो चीजों की बात करता है। जी सर। ये तो सिर्फ मतलब अगर देखा जाए तो दो चीजें नहीं, एक ही चीज की बात कर रहा है कि आरएफ है और फिर एक प्रीमियम है, बस ये दो चीजें डिसाइड करती हैं रिटर्न क्या होगा, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें डिसाइड करती हैं किसी से।
और इसमें भी जो है आरएफ जो आप लोग हम लोग देख रहे थे कि आरएफ जो था बहुत सारी जगहों पे वो कांस्टेंट ही था। Yes. ठीक है, तो अगर देखा जाए कुछ इसी तरह के रिलेशनशिप भी बन रहा है। Yes. ठीक है, a कांस्टेंट, b which is स्लोप और x ये पोर्शन। ठीक, Self-estimate. आगे चलें। हाँ, तो फिर वो कह रहा है कि ये जो बाकी जो चीजें हैं ये वो एनोमलीज हैं। ठीक है, अब ये एनोमलीज क्या है? एनोमलीज होती है जो सब कुछ डिफरेंट हो डिफरेंट, नॉर्मल से कुछ डिफरेंट। ठीक है, ओके, अब ये एनोमलीज क्या है? वन इज स्मॉल फॉर्म इफेक्ट, स्मॉल फॉर्म इफेक्ट। अब अगर स्मॉल फॉर्म इफेक्ट है, स्मॉल फॉर्म और साइज इफेक्ट, साइज यानी स्मॉल फॉर्म साइज ऑफ द फर्म को बता रहा है, तो साइज इफेक्ट भी बोलते हैं, स्मॉल फॉर्म इफेक्ट भी बोलते हैं। वो कहता है कि इट हैज बीन फाउंड दैट कॉमन स्टॉक्स ऑफ फर्म्स विद स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन, पहले तो बताएं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? जो मार्केट शेयर मार्केट शेयर क्या मतलब? तो साथ में सब ब्रैकेट लिखेंगे प्राइस पर शेयर। अच्छा दिखाओ। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होता है कि जो भी करंट मार्केट में आपकी प्राइस चल रही है, ठीक है, सो दिस इज द प्राइस, और जितने भी आपके शेयर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो वो फर्म जो छोटी है यानी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, स्मॉल साइज, और दे प्रोवाइड हायर रिटर्न। हायर रिटर्न्स। अब ये क्या मतलब? छोटी फर्म जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है उसका रिटर्न ज्यादा है। इनकी efficiency भी अलग है। कैसे? क्यों जरूरी नो है? सर, इसका मतलब सो यू आर सेइंग कि एक छोटा सा, हाँ, एक छोटा सा फूड चेन या एक छोटा सा रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा होगा, लेट्स से केएफसी, सर या ताकि केएफसी का रिटर्न जो है वो उससे कम होगा एक छोटे से सर फूड। ताकि ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे केएफसी सर। में शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे ना, जो प्रॉफिट होगा वो सब पे डिवाइड होगा। ना 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 ना, देखिए वो ये बात तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको कंफ्यूज कर, देखिए वो ये कह रहा है प्रोवाइड हायर common stock of firms with small market capitalization provide तो ताकि शेयर returns क्या होते हैं? ताकि स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट करे सर। रिटर्न्स क्या होते हैं? जो डिविडेंड्स पे होते हैं पर शेयर। हमने रिटर्न क्या पढ़ा था कल क्लास में? क्या थे? कल हमने रिटर्न कैलकुलेट भी किया था। इससे पहले बिल्कुल स्टार्ट में हमने रिटर्न को डिफाइन किया था। क्या था? चैप्टर के स्टार्ट में पहली फर्स्ट स्लाइड। सो व्हेन यू वांट टू, तो कल फिर हम लोगों ने क्या किया? कल आपको याद नहीं हमने जब कहा था कि रिटर्न फाइंड आउट करें किसी भी रिटर्न को इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट आया है, हाँ, तो वो क्या था? इन्वेस्टमेंट आपने की, वो क्या थी? वो प्राइस थी, यस यस सर, प्रीवियस प्राइस थी जिस पे आपने लिया, और चेंज इन प्राइस थी, और साथ डिविडेंड Dividend. ये चीजें थी ना। यस सर। ये आपका रिटर्न है किसी भी उस पे। तो फिर आप बताएं उन्हीं, तो फिर तो सेम ही बात होगी ना, फिर तो बात सेम हो गई। आपने कमाया 1000 रुपए और आपके पास है 2 शेयर होल्डर, तो पर शेयर कितना हो गया? 500। लेट से आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। आपने कमाया, आपकी फर्म बहुत बड़ी है, आपने कमाया 50,000 पता नहीं कितने लाख, आपके शेयर होल्डर ज्यादा है, उसको डिवाइड करेंगे तो वही 500 हो जाएगा। तो बात तो वही होती है कि अगर बड़ी फर्म है तो वो ज्यादा कमा रही है, छोटी फर्म है तो वो छोटा कमा रही है, उसके शेयर होल्डर्स भी कम है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो छोटी फर्म्स हैं उसका रिटर्न ज्यादा है देन कॉमन स्टॉक ऑफ फर्म्स विद हाई कैपिटलाइजेशन होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। बस वो कह रहे हैं कि बस ये एक एनॉमली है, इस तरह होता है, एम्पिरिकल स्टडीज है वो ये शो करता है, बस ये चीज़ है। ठीक है, नो रीजन एज सच फॉर दैट। शायद हो सकता है कि आप लिटरेचर से कोई रीजन इसका निकाल के दे सकें, सो या आप किसी एनॉमली पे काम करें और आप देखें एनॉमलीज पे अक्सर लोग काम करते हैं, वीकेंड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि वाकई काम कर रहे हैं। उनकी फिर बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि हाँ शायद इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कम हो, व्हाटएवर, जो भी लिटरेचर है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। आप क्या कह रहे हैं कि क्या रीजन मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है? इस वक्त इसे मतलब कह सकते हैं कि जो छोटे फर्म्स होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो ग्रो कर दें, तो इस वजह से उनका रिटर्न भी ज़्यादा। जो फर्म्स ये बड़ी होती है वो तो ऑलरेडी मतलब ग्रो कर चुकी होती है ना, तो उनका वो तो मतलब वो और ग्रो नहीं करेगी, वो इकोनॉमिक्स में इस वो स्पीड से ले रही है। वो स्पीड से नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यस, शायद मे बी यस। Space for improvement. जी हाँ सर, ताकि आप शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करे सर। मैं क्या करें? शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करे सर, इन्वेस्टर्स को हाँ, अट्रैक्ट ये करे। भी एक कोई शायद रीजन हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्ट करने के लिए तो वो डिविडेंड ज्यादा करेगा ना, लेकिन चेंज इन प्राइस पे भी एक और फैक्टर है, इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जी सर। इसको तो आप लोग नहीं कंट्रोल, ये तो
मार्केट की बात है। डिविडेंड्स को यू कैन कंट्रोल, यस, डिविडेंड आप ज्यादा अनाउंस कर दें, ज्यादा दे दें। सर ये बात भी की है, मतलब एक छोटा फार्म है, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, सो मैं तो डायरेक्टली केएफसी का शेयर नहीं खरीदूंगा, वो महंगा होगा, इसलिए जो छोटा फार्म है अगर उसका शेयर मैं खरीदूंगा तो वो तो आप खरीद रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि रिटर्न ज्यादा तो ये कह रहे हैं इसका डिमांड ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा इन्वेस्टर्स को खरीदेंगे शायद ये हो सकता है। लेकिन इम्पॉसिबल है सर, रियल लाइफ में हो पॉसिबल सकता है, बस जो भी है वो फिर आप लिटरेचर से देखेंगे कि इसका रीजन क्या है, आप थियरीज पढ़ेंगे कौन कौन सी थियरी है जो उसको सपोर्ट कर रही है, बट दिस इज वन फिनोमेनन। क्लियर हो गई? स्मॉल फॉर्म इफेक्ट या साइज इफेक्ट, क्लियर? यस सर। Okay, so this was a small form or size effect. The next one is called as low, is that common stocks with low price earnings and market to book value ratios. Do better than common stocks. Low price to earning. Price to earning ratio क्या होती है? P ratio से बोलते हैं। ये नहीं पढ़ी? Price earning ratio, PE ratio. PE ratio होता है price, price कौन सी होती है? Market price, which means the current market value or current market price, ठीक? Divided by the earnings. Earnings क्या होती है? Profits. ना dividend profits, ठीक है? Net profit, net income, ठीक? तो वो ये कह रहा है कि PE ratio, ठीक है? Common stock with low PE ratio, market to book value. ये market to book value क्या होती है? Market value क्या है? अभी हमने कहा market value से actually current market value. और बुक वैल्यू क्या होती है? उसकी ओरिजिनल प्राइस माइनस हाँ, जो बुक्स के अंदर हो, आपकी बुक्स के अंदर, ठीक है? तो वो कह रहा है कि लो पी जिसका हो, जिसका पी, जिस फर्म्स का पी लो, या जिसका मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो लो, ठीक है? डू बेटर देन कॉमन स्टॉक्स विद हाई रेशो। बस जिसका पी कम है उनके रिटर्न्स ज्यादा हो, जिसका मार्केट टू बुक रेशो, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो कम है वो ज्यादा रिटर्न्स देंगे। फिर से सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात आ गई सर, जो बड़े हाँ, जो थे एक किस्म का शायद फिर से, लेकिन देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब ये कि कितने मार्केट में कितनी कीमत है और पैसे कितना कम है। सर जो जिनका ये रेशो कम है, जिनका ये रेशो कम है, ये रेशो कब कम होगा? जब इसमें से कौन सी चीज कम हो जाए? प्राइस कम होता है सर, प्राइस जब कम हो जाए तो ये रेशो कम हो जाएगा, पी रेशो। सिंपल मैथ्स है यार, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो एक कम हो ये कम जाएगा। इसका मतलब ये कि प्राइस एज कंपेयर टू अर्निंग कम है, प्राइस मार्केट की प्राइस है, यानी मार्केट में वो कम कीमत पे बिक रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है? अर्निंग्स उसकी शायद ज्यादा है, तो ऐसी फर्म का रिटर्न्स ज्यादा है, ठीक है? शायद ये थोड़ा बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, स्टिल अदर एनोमलीज एग्जिस्ट, और भी हैं, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, होल्डिंग अ कॉमन स्टॉक फ्रॉम दिसंबर एंड जनवरी ऑफर प्रोड्यूसेस अ हायर रिटर्न देन इज पॉसिबल फॉर अदर सिमिलर लेंथ पीरियड्स। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं स्टॉक खरीदूं, जी सर, दिसंबर और जनवरी की इसको तरफ पॉज कर दें। Okay, so now this talks about time period, ठीक है? And normally it is associated with holidays, Yes. ठीक है? तो holiday effect या January effect इसको बोलते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करें, मतलब खरीदें आप दिसंबर में और बेचें जनवरी में, मतलब एक महीना होल्ड, और अगर आप इस तरह किसी भी और मंथ में कर लें, मतलब जनवरी में खरीदने फरवरी में बेचने, फरवरी में खरीदने मार्च में बेचने, फरवरी के मिड में खरीदने मार्च के मिड में बेचने, कोई कुछ भी कर लें, तो ये जो दिसंबर टू जनवरी का जो रिटर्न है वो हायर होता है, ठीक है? प्रोड्यूसेस अ हायर रिटर्न देन इज पॉसिबल फॉर अदर सिमिलर लेंथ पीरियड्स। दिस इज कॉल्ड एज जनवरी। इसी तरह एक हॉलिडे इफेक्ट भी है, इस तरह वीकेंड इफेक्ट भी है कि जब आप वीकेंड पे खरीदें, ठीक है, और फिर उसको वीकेंड मतलब वीकेंड फ्राइडे और फिर बेचे मंडे को, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। बस these are norms, मतलब इसका ना आरएफ से ताल्लुक है, ना बीटा से ताल्लुक है, ना इससे ताल्लुक है। This is what it is, ठीक है? Got the idea? सही है? Clear? Anomaly is clear?
So let's see if we have any other anomalies over here. Small firm effect, price earning effect, January effect, ये सारे हम करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, but we have some other In the book. here's the book. So we have some other studies. Yes, ठीक है? sir. कुछ और studies हैं जो कि आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कुछ और models हैं. One or the most famous one after this one, after Kaplan, is Farmer and French study. ठीक है? जो Kaplan के बाद है, this is called as Farmer and French study. अब ये क्या कहता है? Eugene Farmer and Kenneth French, they looked at this relationship. ये जो आप relationship देखते हैं ना, returns का और बाकी चीजों का, तो उन्होंने क्या किया कि they looked at the relationship between returns and market capitalization. अभी हमने कहा market capitalization क्या होती है? Outstanding shares multiplied by per share price. Number of shares multiplied by current market value of the share. ठीक है? यानी price of the share multiplied by number of shares outstanding. Okay. So between common stock returns and a firm's market capitalization, market to book value ratio, जो भी उन्होंने यहाँ पे देखा भी या market to book value ratio. Okay. Market to book value ratio and beta. इसने ये find out. इसने इसका relationship पढ़ा. Testing stock returns over the 1963 to 1990 period. देखिए मैंने तो आपको सिर्फ एक महीने का कहा है फाइंड आउट. People normally do it for Years. 30 years, 20 years. हम जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी को सुपरवाइज कर रहे होते हैं या इवन फॉर आवर ओन PhD, तो वो इतनी बड़ी for 20 years, for 30 years, for more than that. And it's not only for one firm, it is for lots of firms. Training, not thousands, लेकिन let's say अगर 600 firms हैं stock exchange में, तो हम लोग ले लेंगे या तो एक particular sector ले लेंगे 30 firms, 40 firms, या हम लोग कहेंगे कि नहीं हर firm से ले लें इतना इतना या 100 firms या 200 firms या 300 firms, 400 firms. Okay, so this is how we do it. अच्छा, so testing stock returns over the 1963 to 1990 period. अब इसने 63 से 90 तक का पीरियड लिया, उसके ऊपर ये सारा डेटा लिया. किस का डेटा लिया? उसने डेटा लिया स्टॉक रिटर्न्स. स्टॉक रिटर्न्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं? इस तरह. और इसको इसने मैच किया किस चीज के साथ? विद फर्म्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हिच इज साइज. वो साइज के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल होती है. मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो और बीटा. ठीक है. अब इसको क्या पता चला? Found that the size and market to book value variables are powerful predictors of average stock returns. Size जो हम लोगों ने ये बात कहा, market to book value, and size के साथ market to book value and size variables are powerful predictors of average stock returns. तो ये average stock return को ज्यादा अच्छे तरीके से predict करता है. ठीक. अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करता है, कौन सा नहीं करता? ठीक. उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स है कि आप देखेंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स है तो कौन सा अच्छे तरीके से उसको प्रिडिक्ट कर रहा है. ओके, ये भी हो गया. When these variables were used first in a regression analysis, ये सब काम हम लोग करते हैं regression, वो जो आपको रन करके दिया था, याद है? ठीक है. स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट, ये वहां पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं. Okay, were used first in a regression analysis. The added beta variable was found to have little additional explanatory power. जो बीटा है उसकी explanatory power, explanatory कहते हैं कि वो कितना explain करता है, वो कितना returns को explain करता है. तो वो returns को explain करते हुए इतना उसका कोई खास अमल नहीं था. मतलब उसने कोई खास अच्छा explain नहीं किया. उससे ज्यादा अच्छा market to book value और Market size इसने explain किया. Okay, to claim that beta, this led Professor Fama, a highly respected researcher, to claim that beta as the sole variable explaining returns is dead. यानी उसने कहा कि ये जो बीटा है ये तो फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं. बेकार है, ऐसे ही पढ़. तो मतलब लेकिन ये स्टार्टिंग है ना, जब ये स्टार्टिंग हुई, स्टडी स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई यहाँ से. फिर इसके बाद फार्मा फ्रेंच की स्टडी, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी स्टडीज हैं. ठीक है. वो तब आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग रिसर्च कर रहे होंगे ना किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो फिर आप वो सारी स्टडीज पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे हाउ थियरीज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. वक्त के साथ साथ किस तरह नई नई थियरीज आती हैं. क्लियर हो गया? ठीक है. क्लियर हो गया? क्लास समझ आ गया? ओके.
अच्छा, इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है, बस इसके बाद मेरे ख्याल में रियलाइज रिटर्न आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। उसके अलावा अदरवाइज देयर इज नथिंग मच ओवर हियर फॉर यू। और फिर मल्टी फैक्टर मॉडल। मल्टी फैक्टर मॉडल क्या है? मल्टी फैक्टर मॉडल देखिए क्लास कि मल्टी फैक्टर मॉडल क्या है। मल्टी फैक्टर मॉडल, क्लास पे अटेंशन, क्लास पे अटेंशन। मल्टी फैक्टर मॉडल, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कैपम, कैपम को हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ सिंगल फैक्टर मॉडल, ठीक है, ये एक चीज को बताता है। मल्टी फैक्टर मॉडल, उसके अंदर फैक्टर्स बहुत सारे, जिस तरह उन्होंने यहां पे लिखा था y equals a plus bx, ये एक फैक्टर है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं इसको कह दूं कि नहीं, इसके अलावा ये 1, इसके अलावा एक और चीज भी है, इसके अलावा एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज भी, तो ये मल्टी फैक्टर्स हो। ये एक फैक्टर था, ठीक है, क्या हम सिंगल फैक्टर, यस सर। या और भी फैक्टर आ गए, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल, इन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यस सर। वो तो वही है, लेकिन जो चीज उसको एक्सप्लेन कर रही है वो ये सारे एक से ज्यादा है। और फिर में हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। और फार्मा फ्रेंच ने तो कह दिया कि उसने जो स्टडी की उसने कहा कि मेरे डेटा के मुताबिक, हाँ मेरा डेटा के मुताबिक साइज और मार्केट टू बुक वैल्यू अच्छा है, लेकिन ये बीटा जो है ये बिल्कुल बेकार है, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल के साथ ये जो मल्टी फैक्टर मॉडल्स हैं ये भी पढ़ने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट क्लास? ओके, अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें जो एक अच्छी चीज है, एंड स्पेसिफिक मॉडल कॉल्ड द आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। मल्टी फैक्टर मॉडल भी वो कह रहा है कि आप लोग देख लेंगे मल्टी फैक्टर मॉडल क्या है, और उसके अंदर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी है, जो आप लोग देख लीजिए कि क्या कहता है। सो लेट्स गो टू आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। बहुत थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसको डिटेल में इंशाल्लाह 7th सेमेस्टर में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी हुई मैं इधर हुआ आपको इधर हुआ इंशाल्लाह, ठीक, ओके। अच्छा, टू फैक्टर मॉडल, लेट्स टॉक अबाउट टू फैक्टर्स मॉडल। ये टू फैक्टर मॉडल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स a plus bx, यहां तक पढ़ना। यस सर। अब मैं कहता हूं कि नहीं, ये जो है ये फर्स्ट वेरिएबल है, इसके साथ v2 f2 फिर साथ 3 4, अब उसको हटाने के लिए मैं यहां पे ये एरर टर्म यूज करता हूं, ठीक है। ये एरर टर्म यूज होता है जब हमारे पास, हम इसे कहते हैं कि एरर टर्म में बाकी सारी चीजें हम बीच में डाल देते हैं, कि कुछ चीजें अनएक्सप्लेन्ड है वो यहां से एक्सप्लेन होती है, ठीक है। अब मैं तो ये नहीं कर सकता ना कि 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। So this is what we know. Okay, so this is a two factor model. दो factors. एक factor ये हो गया, जी सर। एक factor, जी सर। सही है? So this is a two factor. Okay, arbitrage pricing theory, APT. APT क्या है? APT कहती है the theory in which the price of an asset depends on multiple factors and arbitrage efficiency prevails. ठीक? किसी भी किसी भी एसेट की प्राइस डिपेंड करती है डिफरेंट चीजों, मल्टीपल फैक्टर्स, कोई एक चीज नहीं, कोई दो चीज नहीं, ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर, और जो आर्बिट्राज एफिशिएंसी है वो बीच में रही। इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको सिंपली आप इसको देख लीजिएगा कि इट वाज डेवलप्ड बाय स्टीफन रॉस एंड it is based on the idea that in competitive financial markets arbitrage will assure equilibrium pricing according to risk and return. ये arbitrage असल में है क्या? arbitrage है आर्बिट्रेरी से निकला है सर। तो arbitrary से निकला है क्या है? किसी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? और से देखेंगे क्लास, और से देखेंगे, और से देखेंगे। arbitrage simply means finding two things that are essentially both the same, एक ही चीज, ठीक, same and buying the cheaper and selling the more expensive। मैं कहता हूँ
कि अच्छा यार गोल्ड, ठीक है, कहते हैं यार गोल्ड लेना है, ठीक है सही है यार, सर रेट पता करो पाकिस्तान के अंदर रेट क्या है, आप कहते हैं सर ये रेट, कहते हैं यार यूएई के अंदर करो क्या रेट, आप कहते हैं ये रेट, मैं कहता हूँ अच्छा हाँ, बाइंग द चीपर एंड सेलिंग द एक्सपेंसिव, यानी वहां से अगर मैं कहूँ कि वहां से ये वैसे बहुत इंतहाई सिंपल और बेसिक जिंदगी समझ, वहां से गोल्ड खरीदे और लेट्स से यहाँ पे गोल्ड की एक मार्केट है, वहां पे गोल्ड की मार्केट है, वहां से गोल्ड खरीदे यहाँ पे गोल्ड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, अदरवाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, तो वो सेम हो जाएगा, प्लस टैक्सेस होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सेम हो जाती है। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि वो चीज़ें नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस को हटा दें, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे चीप है, जिस जगह पे जो चीज चीप होती है, जिस मार्केट, उस मार्केट से खरीद के और जिस मार्केट में महंगी होती है उस मार्केट में उसको बेचते हैं, वो रियल एसेट्स के लिए इस्तेमाल होती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल, जी सर, ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रही होती है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, अगर एक ही शेयर दो जगहों पर ट्रेड होता है, एक ट्रेड हो रहा है लेट्स से न्यूजीलैंड में, हाँ चले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं भी चले किसी एक जगह, और एक ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसकी एक प्राइस है और वहां पे एक प्राइस है, यस सर, तो अगर दोनों सेम है, दोनों शेयर्स हैं पीएसओ के, जी सर, तो होना तो ये चाहिए ना कि वहां पे भी सेम हो, वहां पे उनकी करेंसी में होगा जी सर, डॉलर, यहाँ पे हमारी करेंसी में होगा पाकिस्तानी करेंसी में, पीजीआर, जी सर, लेकिन होगा तो सेम, yes sir. लेकिन अगर Price किसी दोनों वक्त same होनी में चाहिए, हाँ सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वक्त में हल्का सा भी डिफरेंस आ जाए जी सर, एंड यू आर एबल टू फाइंड दैट डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग कहते हैं कि अगर वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जी सर, तो हम वहां से खरीद कर you sell this share यहाँ से खरीदते हैं और उधर महंगा बेचते हैं, एग्जैक्टली हम सस्ते वाले से खरीद के और महंगे वाले पे बेचते, दिस इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एंड दिस डज एग्जिस्ट बट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, हाँ हमारी शायद मार्केट से इतनी डेवलप नहीं है, तो सर शायद मार्केट डेवलपमेंट की बात नहीं है सर, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल अलग है सर, इधर कोई और कॉन्सेप्ट है सर, हाँ तो ये शायद ना डेवलप नहीं है, हालांकि हम लोग काफी अच्छा आजकल परफॉर्म कर रही है, लेकिन पता नहीं कैसे परफॉर्म। ओके, ये बात भी क्लियर होगी, ये बात भी क्लियर होगी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी भी क्लियर होगी। अच्छा, अब जाते हैं एक और चीज की तरफ व्हिच इज कॉल्ड एज मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है, वो एक बात दरमियान में कहीं पर आई थी और आप लोगों को मैंने कहा था कि ये हम लोग आखिर में पढ़ेंगे कि मार्केट एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, मार्केट एफिशिएंसी। यस सर, सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट एफिशिएंसी। फाइनेंशियल मार्केट, एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट, एक assumption आई है एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मैंने आपको कहा था इसको फिलहाल थोड़ा सा इतना समझ लें, बाकी बात करें। सो एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट, नाउ व्हाट इज एन एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट? मैंने आपसे कहा था कि ऐसी जगह जहां पर ऐसी मार्केट जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी प्राइस पे। फाइनेंशियल मार्केट इन व्हिच करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही हो उसकी प्राइस पे। यानी अगर इंफॉर्मेशन ये है कि ये बहुत प्रॉफिट्स करने वाला है इस साल, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस हाई है। यस सर, अगर उसकी प्राइस लो है और इंफॉर्मेशन ये है कि ये तो बहुत अच्छी हो जाएगी Yes, sir. या ये बहुत अच्छी है, Demand- फिर इसका मतलब ये है कि ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ एक या दो के पास है, बाकियों के पास नहीं आएगी। अगर बाकियों के पास आ जाए तो सब इसको खरीदना शुरू कर देंगे और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, गॉट द आइडिया? तो मतलब So this जी, प्राइसेस सर रूमर्स पे डिपेंड करते हैं सर, प्राइसेस रूमर्स पे डिपेंड कर, सर अगर कोई स्पेकुलेशन, रूमर्स की बजाय इसका जो वर्ड है ना वो स्पेकुलेशन, यू स्पेकुलेट, स्पेकुलेशंस आप कहते हैं कि यार मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। सर, तो मतलब कभी अगर मस्क कह दे कोई सस्ता स्टॉक हो, वो कह दे कि मतलब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा सर, हाँ, तो उसके बाद भी इतना यू जोर है कि स्पेकुलेट, वो और सच फिर आप में खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड तो बढ़ प्राइस जाएगा, ऐसा प्राइस ऐसा बढ़ जाएगा। बढ़नी शुरू। ठीक है, तो एफिशिएंट मार्केट वो होती है या मार्केट वो वाली एफिशिएंट होती है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। जी सर, गॉट दिस आइडिया? एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट क्लियर हो गई? ओके, अच्छा अब आते हैं तीन किस्म की मार्केट एफिशिएंसी होती है। कौन कौन सी? वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी।
अब हमने कहा एफिशिएंट होता है जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर इसमें वीक फॉर्म किया है। वीक फॉर्म ये है कि जो करंट प्राइसेस हैं दे रिफ्लेक्ट दी हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइसेस, यानी इससे पहले जो था उसके मुताबिक आज की प्राइस है। ये वीक है, ये वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अगर ऐसी कोई मार्केट है जहां पे कि आज की प्राइस इस बात के ऊपर हो कि पिछली प्राइस क्या थी या पुरानी प्राइसेस क्या थी या हिस्टोरिकल प्राइसेस क्या थी, सो दिस इज वीक फॉर्म एफिशिएंसी। मतलब relevant information यहाँ नहीं। देखिए बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ना फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है ना कोई और इंफॉर्मेशन है, सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है और उसकी बेसिस पर आज की प्राइस डिसाइड होगी। आपके पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, यार ये तो पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा जा रहा था और ये इस तरह हो रहा था उस तरह हो रहा था, तो ये अभी भी अच्छा जाएगा, यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इसकी प्राइस के पास। ओके, सो इन शॉर्ट, knowing past price patterns will not help you improve your forecast of future prices, but it's not the only thing now। क्या ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस ही वो चीज है जो कि फ्यूचर प्राइसेस को डिसाइड करता है? No, नहीं, sir। आपको कुछ तो पता होगा ना कि आगे क्या करने वाला है, ये करंट क्या हो रहा है, इसका करंट सिचुएशन क्या है किसी कंपनी कंपनी की सर्विसेज और गुड्स सर किस तरह परफॉर्म करे किसी मार्केट में, वो भी स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं सर। मतलब कंपनी कर सकता है, गुड्स कर सकता प्रोवाइड है, करते हैं कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। अगर वो कैसी है, उसकी गुड्स कैसी हैं, आपको उसके पता है कि अच्छा है। अगर टोयोटा की लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जी सर, ठीक, और वो लोगों को पता चल जाता है, जी सर, तो उसका स्टॉक गिरेगा क्योंकि सारी कॉल बैक होगी, कॉल बैक होगी तो कंपनी को नुकसान होगा। तो ये ठीक है, स्पेकुलेशन पे भी डिपेंड करता है सर, और कंपनी के जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है सर, हाँ। गुड्स बेचने की सर्विसेज प्रोवाइड लेकिन ये वीक फॉर्म में नहीं है, जी सर, वीक फॉर्म में सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस। जी सर, अब सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को देखें, फुली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो सबको अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल। पब्लिकली अवेलेबल क्या चीज होती है आपकी? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो प्रेस रिलीज करते हैं वो, जी सर। यानी जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली सबको पहुंचा रहा है, अगर उसकी बेसिस पर आपकी प्राइसेस डिसाइड हो रही है, सो दैट मींस इट इज अ सेमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेमी। यस सर, तो फिर स्ट्रॉन्ग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी विल बी व्हेन करंट प्राइसेस कोई रिफ्लेक्ट fully reflect all information। और से क्या मतलब है? पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब यानी जो छोटी से छोटी बात भी है कंपनी की, वो सारी की सारी आपको पता है और वो सारी की सारी उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिक। हाँ, वो भी पब्लिक, ठीक है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को पता है, पब्लिक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो भी उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्ट। तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपको बताता है कि वो मार्केट कितनी एफिशिएंट है। अगर कोई मार्केट एफिशिएंट है, इसका मतलब उसकी प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, पास्ट वाली भी और फ्यूचर पब्लिक वाली भी और जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी सारी की सारी इंक्लूडेड है। अगर किसी में खाली पास्ट और पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो वो सेमी स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी की प्राइस में खाली पास्ट इंफॉर्मेशन है या पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, तो वो वीक फॉर्म है। सो दीस आर दी थ्री। I think it's enough for today. We are done with the chapter. Almost done with the chapter. लेकिन we still have time. No sir, no sir. We still have 15 minutes. No sir, एक 30 पर और 2 बजे 1:30 पे नहीं, आज 1:45 पे होना है। सर 2 बजे क्लास में। वही मैंने आपको मैसेज किया गया था। सर इसने इन्फॉर्म नहीं किया था। इसने उसको पॉज करें। क्या किया, ऐसे क्या नहीं किया?